دیکھتے ہیں کہ کنٹری میں یہ بات پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ آگے جا کے پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی جاب ہی نہیں ہے، لوگوں کو جاب نہیں ملے گی اور لوگ بھوکے مریں گے۔ اس بات کی وجہ سے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے ٹین ایجرز کافی ہرٹ ہوتے ہیں کہ پھر ہماری پڑھائی کا فائدہ ہی کیا ہے، تو وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کرمنلز بن جاتے ہیں، چوریاں کرنے لگتے ہیں، رابری کرنے لگتے ہیں اور ہر الٹا کام۔ یعنی ٹین ایجرز اس بات کو لے کے کافی اگریسو ہو گئے تھے کہ ہم نے جتنا بھی کچھ پڑھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہمیں، ہم اگر جاب نہیں کریں گے تو ارن کہاں سے کریں گے۔ اس وجہ سے اس ملک میں کرائم بڑھتا جا رہا تھا، جس کو لے کے گورنمنٹ اور باقی لوگ بھی کافی پریشان تھے۔ تو وہ سب لوگ ایک پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بیٹل رویل گیم کھیلیں گے۔ نام سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ گیم نہیں بلکہ کوئی لڑائی ہونے والی تھی۔ اس کے لیے کسی اسکول کی ایک کلاس کو چنا جائے گا اور پھر انہیں ایک جنگل میں لے جا کر کھلایا جائے گا، یعنی وہ لوگ آپس میں ہی لڑیں گے۔ لیکن اس گیم کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ونر وہی ہوگا جو اینڈ میں سروائیو کر جائے گا، یعنی بچے چاہے 100 ہو یا 200، ونر ایک ہی بچے گا جو کہ آخر میں زندہ بچنے والا ہے اور باقی سارے اسٹوڈنٹس مارے جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ کا پلان تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارے ٹین ایجرز کافی اگریسو ہو چکے ہیں اور اب کرمنلز بن چکے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے ان کو ختم کرنے کا۔ اب مووی یہاں سے ٹرن لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو بیٹل رویل میں لڑکی ون کی تھی اسے اس جنگل سے بچا کر لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کافی ایول اسمائل پاس کر رہی تھی۔ اب ہمیں کسی اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ دکھایا جاتا ہے جس کا نام تھا ناناہارا۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ کافی اکیلا فیل کرتا تھا۔ اب جو ٹیچر ان کو پڑھایا کرتے تھے وہ اپنی کلاس میں بیچارے اکیلے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ نہ آتا تو وہ خود بھی باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچوں نے پڑھائی، اسکول، کالجز سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک دن وہ ٹیچر اسی طرح ہی ہارٹ بروکن ہو کے اپنی کلاس سے باہر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عجیب سا اسٹوڈنٹ ان کی ٹانگ پر چاقو مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد سے ان ٹیچر کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسکول ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور اب بچے مزید بگڑنے لگتے ہیں جب ان کے سر پر کوئی ٹیچر ہی نہیں رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو پورا سال گزر جاتا ہے اور اس کلاس کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹرپ جا رہا ہے۔ یہ کلاس بہت ہی زیادہ مسچیویس تھی اور ان میں 3 لوگوں کا گروپ تھا، ناناہارا، ایک اس کی دوست نوریکو اور ایک اور میل بیسٹ فرینڈ۔ یہ لوگ ٹرپ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور یہ سب ایک بس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، لیکن جس جگہ پر انہیں ہوش آتا ہے وہ جگہ کافی عجیب تھی اور انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی ہوئی تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ٹرپ والی جگہ ہے۔ یہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گلے میں واچ جیسا کوئی الیکٹرانک کالر ہے جس نے ان کی گردن کو جکڑا ہوا ہے۔ ان کے سامنے ان کا وہی پرانا ٹیچر تھا جو کہ اسکول چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ سب اسے دیکھ کے کافی حیران ہوتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور جو ٹیچر ہمارے ساتھ آئے تھے وہ کہاں پر ہے۔ تو وہ بہت عجیب طرح سے ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو تو میں نے مار دیا۔ یہ ٹیچر دراصل اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اور یہاں پر ہم پہ یہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ وہی کلاس تھی جس کو اس سال چنا گیا تھا بیٹل رویل کھیلنے کے لیے، اور یہ اس وقت اسی جنگل میں تھے جہاں پہ کسی ایک کو سروائیو کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹیچر انہیں ایک ٹیوٹوریل ویڈیو دکھانے لگتا ہے کہ اصل میں یہ جنگل کتنا بڑا ہے، اس کا میپ کیا ہے اور کس طرح سے ان کو اس گیم کو کھیلنا ہے۔ اب اس ویڈیو پر ایک لڑکی دھیان نہیں دے رہی ہوتی تو وہ ٹیچر اٹھ کے اس کے سر میں چاقو پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے اس بیچاری کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ ڈر کے بھاگنے لگتا ہے اور اس ٹیچر پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ٹیچر اس کی گردن پر لگا ہوا الیکٹرانک کالر آن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں بلاسٹ کر جاتا ہے اور اس بیچارے لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ سارے بچے پریشان ہو کے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن وہاں پر آرمی ڈپلائڈ تھی، وہ انہیں روکتی اور کہیں نہیں جانے دیتی۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو دوبارہ سے چلایا جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ آپ کو اس بیٹل میں 3 دن گزارنے ہوں گے اور جو اینڈ پہ بچ جائے گا وہی اس گیم کا ونر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لڑکی ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بیگز آپ کو دیے جائیں گے اس میں کیا کیا ہوگا۔ ہر ایک کے بیگ میں الگ الگ ویپنز ہوں گے اور کچھ کھانے پینے کا سامان کہ جس سے یہ لوگ صرف زندہ رہ سکیں۔ وہاں پر کسی اور اسکول کے بھی 2 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آلریڈی یہ گیم کھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں کافی سیریس لگ رہے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس جنگل سے باہر جانے کی کوشش کی تو جو آپ کی گردن پر یہ بیلٹس لگی ہیں یہ بلاسٹ ہو جائیں گی اور آپ لوگ مارے جائیں گے۔ وہ سب بچے کافی ڈر جاتے ہیں اور پھر نوریکو اور ناناہارا وہاں سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے بیگز بھی تھے۔ ان پر کوئی اسٹوڈنٹ اٹیک کرنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر ایک کیو میں چلے جاتے ہیں اور نوریکو بیچاری یہاں پر زخمی ہو چکی تھی تو
तो वो लोग अपने बैग्स खोल कर देखते हैं ये देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से वेपन्स हैं, लेकिन उनके बैग में तो कुछ नहीं होता सिवाय एक बाइनोक्यूलर के और एक शील्ड के, जो कि एक पतले से स्टील की थी। इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो उनका तीसरा मेल फ्रेंड होता है वो यहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ सारे बच्चे मिलकर उसे ट्रांसफर स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जिसके कर्ली बाल थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो पहले भी बैटल खेल चुका था, इसलिए उसे सब कुछ पता था। तो वो उन्हीं से फाइट बैक करके उनके सारे वेपन्स छीन लेता है और फिर उन्हें मार देता है। अब दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि वो खुद ही अपनी जानें लेने लगते हैं, कभी खाई से जंप करके और कभी खुद पर ही अटैक करके। अब ये सारा दिन और रात ऐसे ही गुजर जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो टीचर सबके नाम अनाउंस करने लगता है जो जो लोग मारे जा चुके थे, और वो ये भी बताता है कि किसकी जान अब खतरे में है और किसकी स्कोरिंग कम है। और हैरानी की बात ये थी कि उसमें नोरिको और नानाहारा का भी नाम था, तो वो लोग डर के दोबारा से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनका अपना ही दोस्त आकर उन पर अटैक करने लगता है। नानाहारा उन दोनों को डिफेंड करने की काफी कोशिश करता है और इसी डिफेंस में वो एक्स उसके अपने ही दोस्त के सर पर लग जाती है। अभी वो लड़का मरा ही था कि एक और लड़का इनको मारने के लिए आ जाता है, लेकिन उस पर अटैक करता है वही दूसरा ट्रांसफर स्टूडेंट। वो अब नोरिको और नानाहारा के साथ मिल चुका था। वो लड़का इन दोनों को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग किसी और की मदद नहीं करोगे, यहाँ पर सबसे जरूरी बात है अपनी जान बचाना। मैं पहले ये बैटल खेल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर अमल करना होगा, तभी यहाँ पे सरवाइव कर सकोगे। तो नानाहारा कहता है कि फायदा क्या होगा जब हम में से सिर्फ एक ही बंदा सरवाइव कर सकेगा। तो वो स्टूडेंट कहता है कि स्टिल हम आखिर तक बच सकते हैं। वहाँ पर नोरिको काफी जख्मी हुई होती है और उसे वो लोग उठाकर एक घर की तरफ ले आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट भी छुपा हुआ था, वो काफी अच्छा हैकर था। वो कहता है कि हमारे गले में जो डिवाइस लगी हुई है इसकी वजह से वो प्रोफेसर हमारी सारी बातें सुन पा रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, और हो सकता है कि इसके बाद वो हमें ट्रैक भी न कर सके और हम यहाँ से भाग सकें। वहाँ पर एक बैड गर्ल भी होती है जो सबको अपने मकसद के लिए मार रही थी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपना सोचने वाली थी। तो वो वहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को मारती जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन तीनों स्टूडेंट्स पर जो कि किसी के घर में थे। अब वहाँ पर जो ट्रांसफर स्टूडेंट होता है वो नोरिको को और नानाहारा को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब ये बैटल हुआ तो मैं और मेरी दोस्त इस बैटल में सर्वाइवर्स बच गए थे। अब हम दोनों में से किसी एक को बचना था, तो मेरी दोस्त ने जानबूझकर मेरे पाँव पर गोली मारी कि मैं एग्रेसिव होकर उसे मार दूं, ये समझते हुए कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन वो बेचारी तो मुझे बचाना चाहती थी, मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया और मैं सरवाइव कर गया। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकूंगा। और ये बात बताते हुए वो बेचारा रोने लगता है। यानी ये तीनों यहाँ पे काफी इमोशनल हो गए थे क्योंकि ये जानते थे कि इन सबको एक दूसरे को खोना होगा। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और एक स्टूडेंट को मार के उसके मुंह में बॉम्ब डाल के उसका सर इनके घर के अंदर फेंक देता है ताकि ये सब कुछ एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन उससे पहले ही ये तीनों उस घर से बाहर आ जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। कर्ली बालों वाला ट्रांसफर स्टूडेंट इनके खिलाफ था। वो वहाँ पर आता है और नानाहारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक और दोस्त उसको बचा लेता है। फिर वो लोग जाते हैं उसी हैकर के पास जिसने इनकी डिवाइसेस हैक करनी थी। उनका ये प्लान होता है कि हम बाकी स्टूडेंट्स की भी डिवाइसेस को हैक करके उनको एक्सप्लोड कर देंगे जिनसे वो सारे मारे जाएंगे और हम तीनों यहाँ जिंदा बच जाएंगे। और जब सब मारे जाएंगे तो फिर हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि नानाहारा बेहोश हो जाता है और जहाँ पर उसको होश आता है वो एक लाइट हाउस था। उसके पास एक लड़की थी जिसने उसके जख्मों पर पट्टी की हुई थी। उस लाइट हाउस में 6 लड़कियां और थीं और उन लोगों के पास काफी एडवांस वेपन्स थे। तभी वो अलहदा होकर यहाँ पर आ गईं कि हो सकता है कि हम बच सकें। लेकिन उसमें से एक लड़की नानाहारा से नफरत करती थी। उसे ये लग रहा था कि उसने उसके दोस्त को मारा है, तो वो उस खाने में जहर मिला देती है जो कि नानाहारा के पास जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उसे कोई और लड़की खा लेती है जो कि उसी की दोस्त थी और उन सब में इस बात को लेकर काफी लड़ाई होने लगती है। तो वो सब एक दूसरे को शूट करके ही मार देती हैं और वो लड़की खुद ही सुसाइड कर लेती है। अब नानाहारा को जब होश आ चुकी होती है तो वो परेशान होता है कि नोरिको कहाँ पर गई। तो वो नोरिको और उस हैकर को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नोरिको और वो लड़का बेचारे डेंजर जोन में होते हैं। नोरिको काफी जख्मी होती है जिसकी वजह से उससे भागा ही नहीं जा रहा था। और तभी वहाँ पर वही बैड गर्ल आ जाती है जो कि सबको अपने मकसद के लिए मारा करती थी। वो नोरिको को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं, वही टीचर जिन्होंने ये बैटल अरेंज किया था।
वो दरअसल नोरिको को पसंद करते थे और उन्हीं को देख के वो पूरी लड़की वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर नानाहारा भी आ जाता है। और फिर उसके बाद वो पूरी लड़की और वो कर्ली बालों वाला ट्रांसफर स्टूडेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसी दौरान वही ट्रांसफर स्टूडेंट उस लड़की को हमेशा के लिए मार देता है। उसके बाद वो सब डिवाइसेस को हैक कर लेता है जिसकी वजह से उनका सिस्टम काम ही नहीं करता। आर्मी और वो टीचर इस चीज को सॉल्व करने में लग जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक बड़ा सा बम वहाँ पे छोड़ देता है और उसके एक्सप्लोड होने के बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान उसे भी हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब ये प्लान तो उन तीनों का था, तो वो तीनों यानी नोरिको, नानाहारा और उनका साथी वहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए कि किसने किया। तो वो कर्ली बालों वाला लड़का इन्हीं पर शूट करने लगता है इनकी आवाज सुन के। अब उस तीसरे लड़के को काफी गुस्सा आता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है, तो वो उसे शूट करके उसे मार देता है। इस दौरान वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन था नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उस एक्सप्लोजन की वजह से मारे जा चुके थे। अब सिर्फ ये तीनों बचे थे, यानी बैंड वाला वो ट्रांसफर स्टूडेंट, नोरिको और नानाहारा। अब वो लोग जानते थे कि इनकी डिवाइसेस तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो वो टीचर अभी भी इनकी बातें सुन रहा है। तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट जान के उन दोनों पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ धोखे पे लेके आया, मैं तुम दोनों को मार दूंगा और खुद सरवाइव करूंगा। और इसी के साथ वो एक फेक शूट करता है जिससे उस टीचर को और आर्मी को ये लगता है कि खाली वही सर्वाइवर बचा है। लेकिन उनके कैमरास जो खराब थे तो वो ये देख ही नहीं पाते कि वाकई ये तीनों जिंदा हैं भी कि नहीं। और फाइनली टीचर तो अपनी बात में सक्सेसफुल हो चुका था, जो वो चाहता था वही हुआ। वो अपना सारा सिस्टम वहाँ से समेटता है और अपनी आर्मी को भी ऑर्डर देता है कि बस सब कुछ समेटो और चलते हैं। अब वो खाली टीचर ही वहाँ पर बच गया था। वो उसी सर्वाइवर लड़के यानी उसी ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलता है और तभी वहाँ पर नोरिको और नानाहारा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर टीचर को तो सरप्राइज होना चाहिए था कि ये जिंदा कैसे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो जानता था ये साजिश थी, ये प्लान था उसी ट्रांसफर स्टूडेंट का। वो आकर एक ड्राइंग दिखाता है, एक पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है कि देखो इसमें सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया लेकिन पीछे बची नोरिको। तुम मुझे गलत समझती रही, मैं तुम्हें एक बेटी की तरह मानता था क्योंकि सब स्टूडेंट्स मेरी इज्जत ही नहीं करते थे, इवन मेरी बेटी भी मुझे बुरा कहती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की। लेकिन सबने इस बात का भी गलत मतलब लिया, मैं काफी टूट चुका हूँ। वो नोरिको और बाकी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे मार डालो, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। लेकिन जब कोई उसे नहीं मारता तो वो अपनी गन उन पर पॉइंट कर लेता है। जब नानाहारा ये देखता है कि उसने नोरिको पर गन पॉइंट कर ली है, उसे पसंद करते हुए भी, उसे बेटी कहते हुए भी, तो वो उसी टीचर को शूट कर देता है। लेकिन हम पे ये रिवील होता है कि उस बेचारे टीचर के पास तो टॉय गन थी, वाटर गन थी। तभी उनकी बेटी का उन्हें फोन आता है और वो बेचारा उसके बाद वहीं पर मर जाता है। यहाँ से आर्मी भी जा चुकी थी और सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब पीछे 3 सर्वाइवर्स बचे थे, नोरिको, नानाहारा और वही ट्रांसफर स्टूडेंट। एक बोट लेते हैं और उसमें जाने लगते हैं, लेकिन वो बेचारा ट्रांसफर स्टूडेंट काफी ज्यादा जख्मी था और वो अपने वाउंड्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। लेकिन वो मरते मरते उनसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए और मैं तुम लोगों को हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरिको और नानाहारा किसी सिटी में पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी सिटी में ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पे वो सबसे अपना मुंह छुपा रहे थे कि कहीं पुलिस या उनकी कोई और दुश्मन उन्हें पकड़ न ले। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बच चुके थे और एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।